Rabi al-Awwal is the third month of the Islamic calendar, occurring after Muharram and Safar. In 2021, it began on 7th October. Rabiul Awwal इस्लामिक कैलेंडर का तीसरा महीना है। पहला महीना मुहर्रम और दूसरा महीना सफ़र के बाद तीसरा महीना रबी अल अव्वल आता है। इस साल 2021 में ये 7 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। द लिटरल मीनिंग ऑफ रबी अल अव्वल इज़ द फर्स्ट स्प्रिंग। लफ्ज़ी माने रबीउल अव्वल के पहली बहार है। रबी यानी बहार, अल अव्वल यानी पहली बहार। Rabi al-Awwal is named as such because before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born, people were living in a state of ignorance and darkness. They were engaged in worshipping different deities. The people were deviating from the path of Allah subhanahu wa ta'ala. As the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born, he brought with him the message of truth, the message of Allah subhanahu wa ta'ala and oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. This message led the people towards the path of enlightenment, helping them distinguish between right and wrong. इस माह का नाम रबीउल अव्वल इसलिए रखा गया क्योंकि इस माह में हमारे प्यारे रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। ये वो दौर था जब लोग जहालत और अंधेरों में मुब्तला थे। वो गलत रास्ते पर चल रहे थे। वो ऐसी परस्तिश करते थे जिसे वो खुद बनाते थे। वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे थे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला एक हैं, अकेले हैं और सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत करना हम पर लाजमी है। अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक ना करना, ये तमाम बातें आम इंसान तक पहुँचाई। सही और गलत के बीच का फ़र्क बताया। सुभान अल्लाह। We all know that Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam is the epitome of perfection. He is the role model chosen for us by Allah subhanahu wa ta'ala, and we are to follow his sunnah, hadith in order to lead an ideal lifestyle which is not only defined to us by religion but is in fact beneficial for all mankind if we were to follow it. Why is Rabiul Awwal important to Muslims? Muslims consider Rabiul Awwal to be significant because the following event took place during this month. The birth of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the final messenger to whom the Quran was revealed. The hijrah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when he emigrated from Makkah to Medina. Thus, Islamic calendar is dated from this event. Thirdly, the death of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on 12th Rabiul Awwal in the 11th year of Islam. Rabiul Awwal का महीना हम मुसलमानों के लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आइए इस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहली वजह यह है कि इस महीने में हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। ये वही रसूल अल्लाह हैं जो कि आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं और इन्हीं के ज़रिए अल्लाह पाक ने कुरान उतारी। दूसरी वजह यह है कि इस महीने में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की और जब आपने हिजरत फरमाई तभी से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। तीसरी वजह ये है कि इसी माह रबीउल अव्वल में ही आप हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और आप इस दुनिया से रुखसत हो गए।
Indeed, Allah conferred a great favor on the believers when He sent among them a messenger from among themselves, reciting unto them His words, and purifying them and instructing them in the book Quran and Al-Hikmah, the wisdom and the Sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, while before that they had been in manifest error. What should we do in this month? We should try to remember the beautiful character of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam more in Rabiul Awwal. But we should not single out this month to connect with him and follow his sunnah. Rather, we should use this month as an opportunity to build good habits so we can emulate him throughout the year. हम तमाम मुसलमानों को कोशिश करनी चाहिए कि इस माह में रबीउल अव्वल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनके कैरेक्टर, उनकी आदत, उनके बताए हुए रास्ते, उनकी हदीत, इन तमाम चीज़ को पढ़ें, गौर करें और अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल करने की कोशिश करें, उसको प्रैक्टिस करें। लेकिन सिर्फ इस माह तक नहीं, बल्कि उसको पूरे साल कोशिश करते रहें कि अपने अंदर उस चीज़ को कायम रखें। अल्लाह ताला को इंसान की ये आदत बहुत ज़्यादा पसंद है कि अगर वो कोई चीज़, कोई नेक काम शुरू करे और वो उसको कायम रखे, छोड़े नहीं। अल्लाह ताला को बिल्कुल ये नागवार गुज़रता है कि हम कोई एक नई अच्छी आदत को लेते हैं, अपने अंदर इनहेरिट करते हैं, लेकिन वो फिर चंद दिनों तक ही रखते हैं, चंद दिनों के बाद उसको छोड़ देते हैं। ऐसा हरगिज़ ना करें। जितना ज़्यादा हो सके उनके बारे में पढ़ें, उनकी बातें याद करें, गौर करें, कुरान शरीफ पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें। लेकिन सिर्फ इस माह तक नहीं, बल्कि हर माह में, पूरे साल, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो हम नेक रास्ते पर ज़रूर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आमीन या रब्बुल आलमीन। Above all, Rabiul Awwal is the time for being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for the amazing blessing of sending the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to us and guiding us to his light. It is time for grounding ourselves in our purpose once more and reviving our connection with Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by learning more about the Quran and Sunnah. This is the ultimate blessing and significance of Rabiul Awwal. सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस माह की ये है कि अल्लाह ताला ने हम तमाम इंसान के लिए, तमाम इंसान खल्क के लिए अल्लाह ताला ने हमारे नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि हम गुमराही के रास्ते से, भटके हुए रास्ते से वापस सीधे रास्ते पर चल सकें। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। ये हमारे लिए एक नेमत है। दिस इज़ अमेजिंग ब्लेसिंग फॉर ऑल ह्यूमन काइंड, ऑल मैन काइंड। हम सबको चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें, अल्लाह ताला को थैंक यू बोलें, कुरान शरीफ पढ़ें, उसकी एक एक लाइन के एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ के माने को समझकर पढ़ें। थोड़ा सा ही पढ़ें, लेकिन कोशिश करें कि उसको समझें कि हमने क्या पढ़ा, क्योंकि अरबिक हमारी मादरी ज़बान नहीं है तो हमें समझ नहीं आती, लेकिन अगर हम धीरे धीरे कोशिश करें तो हमें समझ आने लगेगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। O Allah, send peace on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam
and to the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as you sent peace on Prophet Ibrahim alayhi salam and the family of Prophet Ibrahim alayhi salam. Indeed, you are praiseworthy and glorious. O Allah, bless the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as you have blessed Prophet Ibrahim alayhi salam and the family of Prophet Ibrahim alayhi salam. Indeed, you are praiseworthy and glorious. ए अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिस तरह तूने रहमत फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तू तारीफ़ के लायक और बड़ी बुज़ुर्गी अज़मत वाला है। ए अल्लाह ताला बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिस तरह तूने बरकत फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तू तारीफ़ के लायक और बड़ी बुज़ुर्गी अज़मत वाला है।